Good evening, everyone. Good evening, everyone. Welcome to Unacademy Plus. सभी का स्वागत है Unacademy Plus पर. Good evening. Welcome to Unacademy Plus special live class. So today we are conducting a special live class on answer writing strategy for UPSC CSE. UPSC CSE मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ये प्लस क्लास है आज. Good evening, everyone. Good evening. Here's a small announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. If you want to subscribe to Unacademy Plus, you can get 10% discount by using my referral code Sharma20. अगर आप Unacademy Plus पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड है जिसे यूज करके आपको 10% डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा. राइट? सो दिस इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ये छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए. Okay, so let's start the class. I hope everybody has joined the class. सभी ने join कर ली है class. So let's start the class without any delay. Class start करते हैं. Now today's class is on best approach to prepare for answer writing for UPSC mains. UPSC mains के लिए best approach क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का? First of all, before having any approach, we should know the syllabus. I always focus on the syllabus. मैं हमेशा syllabus पे focus करती हूँ. आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आपको syllabus पता होना चाहिए. Because if you know the syllabus, you will study accordingly. अगर आपको syllabus पता है आप उसी के हिसाब से पढ़ेंगे. If you know the syllabus, you will study accordingly. So that is why syllabus is very important. If you know the syllabus is on your fingertips, then your answer writing journey becomes very easy. Okay, आपकी answer writing journey बहुत easy हो जाती है syllabus के पता होने से. All right. So that is why I focus every time on understanding the syllabus first. Now when we talk about UPSC, जब हम UPSC की बात करते हैं, we have to write answers in the essay paper also. We have to write in the GS paper 1 to GS paper 4 as well. Right? GS 1 से GS 4 तक हमें लिखना ही लिखना है. Subjective descriptive paper है. Then optional also we have to write. So mains is a descriptive or subjective paper. We have to write a lot. Okay. So when you start your preparation, you have to also make sure that you have this habit of writing at least in the starting. Make sure that you have a habit of writing at least 2 answers in a day in the initial period of your preparation. Okay. जब आपका इनिशियल पीरियड होता है प्रिपरेशन का, एक आदत बना लेना स्टार्टिंग से कि कम से कम 2 आंसर्स लिखें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग द एनसीईआरटीज, अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, मेक दिस हैबिट, ये आदत बनाओ कि आप बैक क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मेक दिस हैबिट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व द बैक क्वेश्चंस. Okay, at least 2 to 3 questions you are solving from NCERTs. For example, you are reading any static book like Polity M. Lakshmikant or G.C. Leong or you can say Spectrum. Then make sure that you are searching questions on that chapter which you have read online and attempting them in written. Right? लिख रहे हो. So let's start the class. 4 मिनट हो गए, 4.5 मिनट हो गए, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. We'll wait for 1 more minute and then we'll start the class. एक और मिनट के लिए हम वेट करेंगे और फिर हम क्लास शुरू करेंगे. ठीक है? We'll wait for 1 more minute and then we'll start the class. Mains answer writing strategy.
अभी हमने क्लास शुरू करी है, जस्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लास. First important point when you start answer writing practice is having your syllabus on your fingertips. आपका syllabus होना चाहिए आपके fingertips पर. Right from the GS paper 1 till GS paper 4 and optional, your syllabus should be on your fingertips. आपका syllabus fingertips पे होना चाहिए. All right. So this is the first tip. ये है आपकी tip number 1. Syllabus should be on your fingertips. Tip number 1. Now comes tip number 2. When you start your preparation, जब आप अपनी preparation शुरू करते हो, when you start your preparation, make this habit that you attempt at least 2 questions, 2 mains oriented questions in a day. Okay, at least 2 mains oriented questions in a day. Make a habit of attempting at least 2 mains oriented questions in a day. All right, this is going to make sure that you are confident enough in the near future when it comes to mains. धीरे धीरे ये नंबर जो है क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और मेंस तक आते आते आप स्ट्रांग हो जाओगे. ओके, नाउ मोहन इज आस्किंग फ्रॉम फर्स्ट डे मैम. पहले दिन से तो आपको जीरो नॉलेज होती है, कैसे शुरू करोगे? फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव जीरो नॉलेज एट द फर्स्ट डे. हाउ विल यू स्टार्ट? दिस इज नॉट कॉमन सेंस. ये तो कॉमन सेंस नहीं हुआ मोहन, राइट? एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मीन्स whenever you complete 1 or 2 chapter of NCERTs, there are questions given in the back of the chapter, right? Both MCQ based questions and subjective questions, right? Yes or no? Tell me in the comment section, yes or no. होते हैं ना, जब NCERT पढ़ते हो आप तो NCERT के चैप्टर के बैक पे MCQ और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होते हैं, right? Whatever NCERTs you are studying, at the back of the every chapter there are subjective questions and MCQ based questions. Solve them. उनको solve करो. All the subjective based questions, write them. Make a separate register for NCERTs. NCERTs के लिए separate register बनाओ, right? If you want to make notes from the chapters, do it. If you do not want to make notes, don't worry, but don't make it. But solve the questions given at the back. What will it do? Why am I saying this? Why am I asking you to do this? Because your habit of writing will improve. You will start inculcating a habit of writing, right? इससे क्या होगा? आपकी writing बनने लगेगी, आदत बनने लगेगी, right? Slowly, gradually, you will one day, after completing every NCERT, one day you will be in a position to attempt any question with confidence. Okay? Even if you are lacking in content, you will try to attempt it. मेंस में सब बच्चों को सारे क्वेश्चंस नहीं पता होते. In mains also, not everybody solves the entire paper correctly, right? Some students leave some questions, but when you will be having a confidence, a certain point of confidence or stage of confidence in you, what will happen? That in mains you will, if you are confused in any question, you will be in a position to attempt it, राइट? आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. इससे क्या होगा? मेंस में किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो या कंफ्यूजन आ जाता है, आप अटेम्प्ट करने से नहीं डरोगे. यू विल नेवर बी स्केयर्ड ऑफ अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन इन मेंस if you develop this practice of writing, of solving every question at the back of the NCERT chapters. All right, so this is to first instill confidence, because from day one you can never inculcate a habit of writing. Day one से habit नहीं बनेगी, because from the in the first week of your preparation you try to remember the syllabus, right? Even topper will leave. Toppers 56% 55% पे टॉपर्स बनते हैं यूपीएससी में, अगर आपको पता नहीं हो तो. यूपीएससी कॉलेज एग्जाम नहीं है या स्कूल एग्जाम नहीं है जहाँ 95 या 99% आते हो. दिस इज नॉट अ कॉलेज और स्कूल लेवल एग्जाम वेयर यू विल गेट 95% मार्क्स, 99% मार्क्स. एट 56-55% टॉपर्स आर गेटिंग दिस परसेंटेज, राइट? यूपीएससी का जो पास परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पेपर हर कोई करके आता है. All right, nobody has solved 100% paper. There are few people who solve 100% paper, but it is not, nobody is solving 100% paper. There are some questions because of time constraint or confusion. Students leave some questions. एक दो question बच्चे छोड़ ही देते हैं time constraint की वजह से, या
कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है या कंफ्यूजन होती है। क्लियर एवरीवन, समझ आ गई बात? इसलिए इतना मत सोचा करो कि अरे हमें तो 95 लाने हैं, 99 लाने हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर? You make sure that in the given time period, that is 3 hours, you are going to solve, you are going to try to solve every question. हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे 3 घंटे में। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं छोड़कर आऊंगा या 1-2 क्वेश्चन कोई बात नहीं छूट जाए तो कोई बात नहीं। फॉर यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर कंप्लीटली इन 3 hours. फॉर दैट यू हैव टू डू द प्रिपरेशन नाउ। अगर आप चाहते हो कि पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड प्रिपरेशन शुड स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी एवरी एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी आपने उठाई, एक चैप्टर आपने पढ़ा, whatever chapters you are going through or studying, right? What you have to do, solve the back questions. Now Angel Sharma is not even serious in the class, not even focused in the class, because I am explaining in Hindi also. Angel Sharma बिल्कुल serious और focus नहीं है क्लास में, क्योंकि इंग्लिश के बाद मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट स्टिल उनका ये डाउट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सीरियस रहो, क्योंकि आपके डाउट्स दिखाते हैं कि आप कितने फोकस्ड हो। ऑल राइट, now tip number 1, syllabus. You should know the syllabus. Tip number 2 is when you start with the NCERTs, आप सबसे पहले NCERT से शुरू करते हो ना, you start with the NCERTs first, right? So after going through every chapter, solve back questions. हर चैप्टर को पढ़ने के बाद NCERT में पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, NCERT चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। दिस विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन यू, इससे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ठीक है। एंजल शर्मा नहीं, आप एक दिन पहले ही पढ़ना यूपीएससी के। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? ऑब्वियसली एक साल पहले शुरू करना पड़ता है ना। क्लियर? अभी शुरू करोगे तभी तो आपका बुक्स खत्म होंगी, सिलेबस खत्म होंगे, एक दिन पहले करके थोड़ी होगा। ठीक है, क्लियर? नाउ टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज दैट व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर्स, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, बिकॉज यू विल रीड द न्यूज़पेपर्स डेली, राइट? You will read the newspapers daily. So when you will read the newspapers, there is a website called Insights. जब आप न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, whichever newspaper, there is a website called Insights IAS. ये आपकी वेबसाइट है, Insights IAS. ठीक है? Now daily from the Hindu newspaper and the Indian Express newspaper, questions, mains questions are given in this particular website. ठीक है? मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस इस वेबसाइट पे दिए होते हैं। ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यूज़पेपर यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट एंड सॉल्व एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस। एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ऑलराइट, दीज आर द बेसिक टिप्स। ये आपके बेसिक टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ। दीज आर द बेसिक टिप्स। So after covering NCERT, after covering every chapter in NCERT, solve the back questions. Okay, हर NCERT chapter को cover करने के बाद back question solve करने हैं। After completing newspaper, after reading it and making notes out of it, you have to visit Insights IAS website and solve at least not all, at least 4 questions. And they give you the hint also. इनसाइट वेबसाइट आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जाना है और वहां मेंस से के दिए हुए क्वेश्चंस बस 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और लेस देन 4 ऑल्सो, बट नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं। 3 मेनली 3 या 2 कर लो, बट उससे कम नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 तो करो ही करो। एंड हिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर इज ऑल्सो गिवन फॉर द बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो तो आपको हिंट भी दिया होता है वहां पर कि कैसे आपको आंसर स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। दिस वॉज द बेसिक टिप, ये आपका बेसिक टिप था। नाउ सेकेंड important doubt in the minds of the aspirants are, second important doubt in the mind of aspirant is, ma'am word limit क्या होती है? What is this word limit? Should we stick to this word limit or we can extend this word limit or we can go beyond this word limit? second doubt आता है कि ये word limit क्या होती है, क्या हमें follow करनी चाहिए या उससे आगे हम जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जितनी वर्ड लिमिट दी है उससे अगर 10 वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। whatever word limit has been given, if you extend it by 10 more words, no issues, but more than 10, what you are going to do, what the examiner is going to do, it is going to reduce your marks. ठीक है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट क्या है? अगर आप वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स की दी है, इफ वर्ड लिमिट इज ऑफ 250 वर्ड्स एंड इफ यू आर राइटिंग 260 वर्ड्स, दैट इज ओके, इट इज एक्सेप्टेबल, बट मोर देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है।
ठीक है. Similarly, if 150 words की word limit है, if the word limit is of 150 words and you are extending it by 160 words, then it is okay. But more than 160 words is not okay because it will affect your marks. Okay, इससे आपके marks affect होंगे. Now there are these word limits which examiner can ask you to write answers within. Okay, अब इतने word limits होते हैं जिसमें आपको आंसर लिखना है. Either it is 100 word or it is 150 word or it is 200 word or 250 words or 300 words. ठीक है, ये आपके नॉर्मल वर्ड लिमिट होती है. ऑल राइट, क्लियर. 100 वर्ड हो जाती है तो हाफ पेज में आप लिख सकते हो आंसर, बट इट डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग. ये आपको कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता. ठीक है, ये आपके हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है. ऑल राइट, इट डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो. देन 150 वर्ड्स की बात आ जाती है तो 1 पेज. 150 word limit is 1 page. Then 200 words की बात आती है जब when it comes to 200 words again it is 1.5 page. 1.5 page हो जाता है. 250 words हो जाता है तो 2 pages, 2 और 2.5 page. Clear? 300 words 2.5 page to 3. All right, 3 or 3.5 pages. So this is the, you can say assumed number of pages which will fall under this word limit. Okay, but again it depends on your handwriting. ये आपके handwriting पे ही depend करता है. ठीक है, clear everyone? इतना सबको clear हो गया? This much is clear? इतना सबको clear है? All right. ठीक है, second doubt is clear. Now always make sure that you are writing within the word limit. हमेशा make sure करना. Why am I saying this? Because the examiner will see. आप examiner ये notice करेगा that if you are given a limit, can you you can say consolidate your opinions, your answer, your content within that limit or not. ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है कि जो उसको लिमिट दी गई है उसी के अंदर वो अपने थिंकिंग को, आइडियाज को कंसोलिडेट कर ले. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी विच इज सीन इन द एडमिनिस्ट्रेटर, अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दैट ही और शी इज एबल टू कंसोलिडेट द कंटेंट और हिज आइडिया और हर ओपिनियन विद इन द गिवन लिमिट. अगर आप वो कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू तक जाओगे. अगर आप वो नहीं कर सकते तो इंटरव्यू तक नहीं जा पाओगे. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कंसोलिडेट योर आइडियाज, योर कंटेंट विद इन दी वर्ड लिमिट. आपको अपने आइडियाज और कंटेंट को वर्ड लिमिट में आप कंसोलिडेट करके रखना है. यू हैव टू शो इट टू द एग्जामिनर दैट यस, if whatever limit you are giving us, our ideas, our, you can say, mindset or thinking or content can be consolidated within that word limit. All right, clear everyone? One of the best qualities which is just in the aspirant during mains exam. Interview में तो personality आपकी पता चली जाएगी, right? In the interview your personality will be seen clearly. The way you talk, the way you sit, the way you present your ideas, your honesty, right? Everything, your confidence, everything can be seen in the personality test. But in mains, the examiner cannot see you. So how will the examiner know about your personality? Through your written answers. मेंस में आपको एग्जामिनर देख नहीं सकता ना, तो वो कैसे पता लगाएगा कि आप फिट हो कि नहीं यूपीएससी के लिए? आपके रिटन आंसर्स के थ्रू. आप कितने सीरियस हो, कितने ज्यादा ऑनेस्ट हो, राइट? ये सारी चीजें, कितना पेशेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है, ये आपके आंसर्स से पता चलेगा. क्लियर एवरीवन? इतना सबको समझ आ गया? दिस मच इज क्लियर. Aryaman, again Aryaman is number 2. He is not focused in the class, because if he was focused he would know that I am explaining first in English, then I am translating it back into Hindi. Okay Aryaman, both Hindi and English languages are being used, so please be focused in the class. Okay, so this much is clear. Doubts on word limit is clear? Word limit पे doubts आपके clear हो गए अच्छे से? All right. Now the second doubt आपका आता है. The second doubt is, ma'am, what is the meaning of the terms discuss or critically discuss or critically explain, right? Or evaluate. These are the keywords. ये सारे keywords होते हैं. These are the keywords. So we should first delve deeper into it, because if we understand the meaning of these keywords, only then we'll be able to answer the question. मान लो आपको इन terms का मतलब ही नहीं पता, तो आंसर कैसे लिख पाओगे? If you do not know the meaning of these terms, how will you be able to explain the answer, right? You will be beating about the bush in the answer sheet,
right? So that is why we should know the meaning of these terms. So let us understand what does these terms means. ये समझ लेते हैं कि इन terms का मतलब क्या होता है, then we'll move forward. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Now first important term is examine and critically examine. पहला word in आपका पवन हिंदी में बताओ. पवन बिल्कुल समझ नहीं आ रही है आपको बात, एक बारी में समझ नहीं आती है बात आपको. हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है बात, ध्यान बिल्कुल नहीं है. सो दिस शोज द सीरियस नेचर और एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट. इससे पता चल जाता है कितने सीरियस हैं क्लास में और इस एग्जाम को लेकर, ठीक है, और कितने नॉन सीरियस हैं. तो आप अपना यहाँ पर देख सकते हो. इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन सी दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर द एग्जाम, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर सीरियस, ठीक है? ऑलराइट, पहले सुनो तो सही मैं क्या कह रही हूँ, पूरी बात सुन लो, उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड. नाउ प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020. आप में से कितने बच्चे 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जरा पता चले. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021. 2021 के लिए कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? 2022, उसी हिसाब से I'll explain. According to that I'll explain. All right. So examine का मतलब होता है जांच करना. Examine means जांच. All right. What do you mean by examine? It means जांच. All right. Clear? And critically means गंभीर रूप से. Critically का मतलब क्या होता है? गंभीर रूप से. ठीक है, समझ आ गई बात? एग्जामिन इन हिंदी मीन्स जांच, क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स गंभीर रूप से, सीरियसली आपको प्रूव करना है, सीरियसली आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, गंभीर रूप से जांच करना है. सो एग्जामिन मीन्स इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन एग्जामिन you have to examine deeper, or the topic which has been given in the question, you have to examine deeper. That means examine deeper means first you have to explain the topic. पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो पूछा गया है. ऑलराइट, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक. ऑलराइट, एक सेकेंड रुको, ये कौन है? आई कैन नॉट सी योर कॉमेंट्स. ये राहुल कुमार आए, एक और नॉन सीरियस एस्पिरेंट आ गए, राइट? एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना. इफ एनी टॉपिक हैज बीन गिवन एंड दे आर आस्किंग यू टू एग्जामिन इट, अगर कोई टॉपिक दिया है और वो आपसे बोल रहे हैं एग्जामिन करो, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन द टॉपिक टू द एग्जामिनर. आपको टॉपिक ऐसे समझाना है जैसे एग्जामिनर को पता नहीं है, वो आप ही के मुंह से समझना चाहता है, राइट? You have to explain the topic in such a way to the examiner that the examiner doesn't know about it and you have to explain it to him. You have to make him understand what is this topic all about. All right? Like a layman. जैसे एक layman होता है वैसे. Clear? Then after explaining the topic, you have to explain about the two aspects of the topic. Two aspects are positive aspects and negative aspects. दिस इज अबाउट एग्जामिन. जब आपने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, आप बताओगे उस टॉपिक में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है. ओके, एंड देन यू विल कंक्लूड. कंक्लूड मीन्स यू विल गिव योर ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन दोगे. कंक्लूड मीन्स यू विल गिव योर ओपिनियन. ऑलराइट, क्लियर? नाउ योर ओपिनियन शुड बी वेरी शॉर्ट. आपका ओपिनियन बहुत छोटा होना चाहिए एंड इट शुड बी न्यूट्रल. आपका ओपिनियन किसी का साइड नहीं लेना है. आपके ओपिनियन को यू डू नॉट हैव टू टेक साइड्स when you express your opinion. Okay, it should be well balanced, neutral opinion. Why? Because you are going to be an administrator, you are going to be administering so many people in your area, right? So you have to think unbiasedly. अगर आप ही bias हो जाओगे तो citizens का क्या करो, कैसे भला होगा, उसको administer कैसे करोगे, right? That is why आपका opinion, आपकी व्यू पॉइंट न्यूट्रल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक और न्यूट्रल होना चाहिए. किसी पार्टी का साथ नहीं देना, किसी मिनिस्टर का साथ नहीं देना, किसी मिनिस्ट्री का साथ नहीं देना, आपको सिटीजन्स का साथ देना है. यू विल नॉट साइड विद एनी मिनिस्टर, एनी पार्टी और एनी मिनिस्ट्री. यू हैव टू साइड विद योर सिटीजन्स. ओके, क्लियर? समझ आ गई? वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होते हैं.
वे फॉरवर्ड मतलब भी ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक आपका ओपिनियन होता है, कंक्लूजन भी वही होता है, ठीक है. यू कैन कॉल इट कंक्लूजन ऑल्सो, यू कैन कॉल इट वे फॉरवर्ड ऑल्सो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. Clear? This is examine. This is how you have to answer questions on examine. Now comes critically examine. Critically means now you have to be very serious when you explain a topic. Okay? Critically मतलब क्या होता है कि आपको उस particular topic का first you will explain the topic only. The first part will be same. You will explain the topic. आप अपने topic को explain करोगे. First part is same. Then second part is also same. That is you will bring about the positive and negative in the topic. आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही समझाओगे उस टॉपिक में, ठीक है. क्लियर एवरीवन? ठीक है. बट थर्ड पार्ट इज यू विल गिव योर सॉल्यूशंस, हाउ टू हैंडल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द टॉपिक, यू विल गिव योर सॉल्यूशंस, ठीक है. और इनोवेटिव सोल्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एंडोसल्फन का जो यूज है कंट्री में, उस पर बैन लगाने की बात की जा रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बैन with growing demand for banning the endosulfan in the country. So you will write the positives of endosulfan and negative of endosulfan. Then after that you will give your solutions how to tackle with the menace of endosulfan. Endosulfan का जो negativity है इसको use करने का, आप इससे कैसे जूझ सकते हो, right? ठीक है. सुजीत जो आपको कीवर्ड समझा रहे हैं वो तो आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है. आगे की तरफ भाग रहे हो. जितना पहले समझा रहे हो उतने पे ध्यान तो दे दो पहले, ठीक है. तो नेगेटिव जो है एंडोसल्फन का, उसका सोल्यूशन आपको लिखना होगा. इज बैनिंग द सोल्यूशन, राइट? और इंस्टेड ऑफ बैनिंग कैन वी डू एनीथिंग एल्स? वी कैन रिस्ट्रिक्ट द यूसेज. हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट? हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस सीरियसनेस इनटू द सोसाइटी? ये आप सोल्यूशन दोगे अपने. एंड आफ्टर गिविंग योर सोल्यूशन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर, ठीक है. सोल्यूशन देने के बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे. यस, वेरी गुड नीरज. All right, after giving the solution you will conclude. Now conclusion will be in 3 to 4 lines. Always remember, conclusion कभी भी ज्यादा का नहीं होना चाहिए. 3 से 4 lines में ही आप conclude करोगे, right? Conclusion means way forward, that if your solutions are implemented, यानी कि अगर आपने जो solution दिया वो implement हो जाए तो society का क्या रूप रहेगा, society कैसी होगी, right? या environment कैसा होगा. Shreyash, if you do not know what is endosulfan, then you have to leave the question. राइट? जब पता ही नहीं है एंडोसल्फन क्या है तो आपको लीव करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. यस भव्या, सॉल्यूशंस इफ दे आर इनोवेटिव यू आर गोइंग टू फेच बोनस मार्क्स. अगर आपके सोल्यूशन कहीं से कॉपीड नहीं है, यानी कि कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी और एडमिनिस्ट्रेटर ने सोल्यूशन दिया, आपने टेप दिया, अगर ऐसा नहीं है, आपके खुद के सोल्यूशन है, तो बोनस मार्क्स मिलेंगे. देन यू विल गेट बोनस मार्क्स. बट इफ देयर इज अ टॉपिक विच यू डू नॉट नो एनी आंसर ऑन, राइट? इफ अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आंसर्स आपको नहीं पता, ओके, या if you do not know about the topic itself, topic ही नहीं पता, content you do not know about the content, you do not know how to explain it, then you can leave that question, because अगर आपने गलत लिखा content तो शुरू में ही आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे, ठीक है. नहीं प्रणव, ऑलराइट, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट जिसके बारे में पता नहीं है और उसके बारे में आप इधर उधर की बातें लिखोगे तो आपका एटीट्यूड समझ आ जाएगा, राइट? बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा. इफ यू डू नॉट नो अ टॉपिक एंड यू आर राइटिंग एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, then what will happen? Your attitude, non-seriousness attitude will be exposed in front of the examiner, and then it is tough to gain marks. Okay? समझ आ गई बात? इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपका एटीट्यूड यूपीएससी को लेकर कैसा है. So write only if you have fair idea of what the topic is talking about. All right? समझ आ गई बात? Now comes comment and critically comment. अब बात आती है comment करो या critically comment करो. Again, critically, when the term critically comes, what you have to do? You have to tell about the positive and negative of the topic, then give your solutions and then conclude. इसको लिख लो, draw this flow chart. You have to explain the topic, you have to give the positive and the negative of the topic, then you have to give the solutions of the topic, and then you have to conclude. फिर आपको conclude करना है, ठीक है. This is when the critically term is asked. All right, then comment. अगर सिर्फ comment है, then it's only comment, right? What do you mean by comment? Your answer to this question must contain your opinion backed by certain evidences or proof. अगर आपको comment करने की बात की जा रही है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना opinion based answer लिखना है स्टार्टिंग से ही, प्लस अपने ओपिनियन को प्रूफ या डेटा, गवर्नमेंट डेटा या फिगर्स जो होती हैं गवर्नमेंट फिगर्स या एविडेंसेस से बैक करना है. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्लानिंग कमीशन टू रिवाइज चैप्टर ऑन हेल्थ इन 12th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट.
कमेंट, अगर मान लो क्वेश्चन है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के पास, प्लानिंग कमीशन के ऊपर एक एक जरूरी है ये चीज, नीड है, या नीड ऑफ द मोमेंट है कि प्लानिंग कमीशन जो 12th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट है उसका चैप्टर 5 जो है, जो कि हेल्थ पर है, उसको रिवाइज किया जाए, राइट? दिस इज द अर्जेंट नीड ऑफ द करंट सिचुएशन. सो कमेंट मीन्स योर ओपिनियन, एग्जामिनर इज आस्किंग योर ओपिनियन, इसमें आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है. कमेंट मीन्स व्हाट डू यू थिंक. दिस इज अ स्टेटमेंट विच द एग्जामिनर हैज गिवन. ये एक स्टेटमेंट है जो एग्जामिनर ने दे दिया. नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू what do you think. comment means what do you think, write it down. comment का मतलब होता है what do you think और what is your opinion. so first you have to explain about the chapter health in the 12th 5 year plan. पहले तो आप explain करोगे कि chapter health है क्या ये 12th 5 year plan document में. Then after explaining the chapter on health in the 12th 5 year plan document, you have to write your opinion. Do you think that this chapter should be revised? And if yes, then give evidences or proof support your answer. If you think no, there is no need to revise it, then also give evidence why. राइट अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है, इसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है, तो बताओ क्यों रिवाइज करने की जरूरत है, प्रूफ दो. अगर आपको लगता है नहीं रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो बताओ क्यों जरूरत नहीं है, प्रूफ दो. सो आइदर वेज यू हैव टू गिव प्रूफ व्हाई डू यू थिंक इन अ सर्टेन वे. ऑलराइट, इफ यू वांट इट, इफ योर कमेंट इज इन अ सर्टेन वे, यू हैव टू प्रूफ इट. राइट, यू हैव टू प्रूव इट विद डेटा, फिगर्स और एनी एविडेंस, एनी एग्जाम्पल आपको प्रूव करना है. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात. क्रिटिकली कमेंट मीन्स आपको नेगेटिव्स जो भी है, अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, टॉपिक में, फॉर एग्जांपल इन चैप्टर ऑन हेल्थ देयर इज एनी नेगेटिव पॉइंट, यू हैव टू गिव योर सॉल्यूशंस. आपको अपना सॉल्यूशन देना है कि इसकी जगह ऐसा हो सकता था. राइट, क्लियर एवरीवन. नाउ कम्स एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज. क्रिटिकली वर्ड तो वी हैव अंडरस्टूड. ओके, क्रिटिकली आंसर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, नॉट विद यस और नो. इस तरीके की गलती से भी मत कर देना. ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू, ऑलराइट, विल यू डायरेक्टली स्टार्ट विद यस और नो, और फर्स्ट यू विल एक्सप्लेन इट टू मी दैट द टॉपिक इज अबाउट दिस दिस दिस. अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप सीधा हाँ या ना में जवाब दोगे, या मुझे समझाओगे टॉपिक इसके बारे में, फिर आप बताओगे आपका आंसर यस क्यों है और नो क्यों है. ठीक है, ये तो बात करने के तरीके, कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ यू आर लैकिंग दैट, यू आर गोइंग टू गेट योरसेल्फ इम्पैक्टेड इन द इंटरव्यू. ठीक है, क्लियर. फर्स्ट एक्सप्लेन, ये तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो आपके आंसर राइटिंग में भी झलकेंगे. दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द क्वालिटी विच यूपीएससी इज चेकिंग. तभी सूटेबल एस्पिरेंट्स ही क्लियर करते हैं, क्योंकि उनमें बेसिक स्किल्स हैं. ठीक है, यू हैव टू डेवलप दिस स्किल्स. ये स्किल्स आपको डेवलप करने हैं. इफ देयर आर योर कम्युनिकेशन पार्ट इज वीक, यू हैव टू डेवलप इट एंड इट कैन बी डन. आप डेवलप कर सकते हो. राइट, ऐसा नहीं होता कोई पेट से ही एक्सीलेंट कम्युनिकेटर पैदा होता है, हर कोई डेवलप करता है. ठीक है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट इट इज रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग ऑल्सो. कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंटरव्यू में नहीं दिखता, आपके आंसर्स में भी दिखता है. ठीक है, सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस. नाउ आई विल जस्ट शो यू वन स्लाइड, देन वील कम बैक टू दिस वन. ओके, whenever you write an answer, जब भी आप एक आंसर लिखते हो, introduce it and it should be not more than 2 to 4 lines. 2 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. If it is exceeding 4 lines, your word limit will automatically get reduced, क्योंकि बॉडी में फिर कम लिखना पड़ेगा. राइट, 2 से 4 लाइन्स में ही लिखना. Then body of the answer. Now body of the answer here. ठीक है, yes मोहन, you are right. In the body of the answer here you can divide it into 2 parts. Body of the answer को आप 2 parts में. शुभम, again I was focusing on communication skills, you are not focusing on the class. I've told you the best administrator is the one who has the best communication skills. Communication skills means introducing your topic or yourself first, then going on to the main part of the answer. ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर वही बनेगा जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगा, यानी कि पहले वो टॉपिक समझाएगा, समझाना मतलब इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद वो मेन पार्ट पर आएगा. इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ गवर्नमेंट वांट्स अ सर्टेन रिपोर्ट फ्रॉम यू, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और गवर्नमेंट आपसे कोई रिपोर्ट चाहती है, तो आप सीधा रिपोर्ट के जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो लिखकर भेज दोगे? व्हाट विल यू डू? Will you just type the main facts and figures or research work in the report and you will send it? No, you will first introduce your area, your district. Right or wrong? क्या करोगे? अपने area, अपने district को introduce करोगे. Right? Only then you will
submit your research work and conclusion, what is your opinion, and then send it to the ministry. तभी तो ministry को भेजोगे. So your mains answer writing. Why mains is crucial in UPSC? Because after clearing UPSC, you are going to you have to use this answer writing skills in your report making. जितने भी बड़ी बड़ी reports हैं, have you all seen Mr. Narendra Modi giving his speeches? उनके speeches देखे हैं ना. First he introduces the topic. Okay शुभम, जरा सुना करो, आसपास थोड़े aware रहो. Narendra Modi ji, every time he first introduces his topic, whatever coronavirus is all about, he introduces it. Then he tells about the current situation, then facts and figures, and then he concludes. ओके नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक, फिर उसके बाद बताते हैं अभी कंडीशन क्या चल रही है कंट्री में, फिर फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे, कितनी डेथ हुई, कितना क्या हुआ, कितनी रिकवरी हुई, फिर कंक्लूजन बताएंगे. राइट, clear? So those reports, those speeches are made by IAS officers only. मोदी जी की जो speeches होती हैं वो कौन लिखता है, IAS officers बनाते हैं. Right? So this main answer writing skills can be seen in the speeches of Prime Minister also. You are going to make the speeches. If you don't know that we should introduce our answer, if you are asking this question, how will you be able to make speeches for the Prime Minister? अपने CM के लिए, PM के लिए कैसे स्पीच बनाने वाले हो आप लोग, जब आपको यही नहीं डाउट आ रहा है कि हम इंट्रोड्यूस क्यों करें, हर आंसर में इंट्रोड्यूस करें. राइट, यस, इन एवरी आंसर यू हैव टू इंट्रोड्यूस. ओके, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हाउ विल यू एक्सप्लेन द टॉपिक? यू हैव टू सपोज दैट द एग्जामिनर इज अ लेमैन. आपको ऐसे सपोज करके आंसर लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, तो आप इंट्रोड्यूस करोगे. इस तरीके के ख्याल और क्वेश्चन दिमाग में कभी नहीं आने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में तो नहीं आने चाहिए. ठीक है, क्लियर? नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट वन आंसर, यस, चीफ मिनिस्टर की स्पीच, हर मिनिस्टर की स्पीच आप लोग ही लिखने वाले हो. ठीक है, क्लियर? सो वन आंसर शुड बी रिटन इन 7 minutes. एक आंसर आपका 7 मिनट में इन द एग्जाम हॉल. अभी नहीं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ज्यादा समय ले सकते हो. ठीक है, इफ यू आर practicing at home right now, you can take more than 7 minutes because you are in the practice mode. अभी आप practice mode पे हो. इशिता, emojis मत भेजो, क्लास पे फोकस करो. ठीक है, right now you are in a practice mode, so yes, you can take more than 7 minutes. But in the exam hall, always remember, if you want to finish the paper within 3 hours and if you want to revise your paper also, then in 7 minutes you have to attempt one answer. एक आंसर को 7 मिनट में अटेम्प्ट करना एग्जाम हॉल में. अभी आप टाइम ले लो, ग्रेजुअली वो टाइम डिक्रीज होगा. ठीक है, जानवी, अभी मैंने बताया डेटा, फैक्ट्स, फिगर बॉडी ऑफ द आंसर में आना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आप फैक्ट्स फिगर क्यों बताओगे, आप टॉपिक को डिफाइन करोगे ना. राइट, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. इंट्रोडक्शन होता क्या है? बहुत से स्टूडेंट है जिनको इंट्रोडक्शन नहीं पता क्या होता है, एंड दे हैव क्लियर्ड देयर क्लास 12th एग्जाम. What is introduction? Mr. Bose is saying definition, then journal information. Manish is saying okay. So Sanoj is saying okay. Explain the topic, define the topic. Topic को define करना. Yes. जब आपको पता है मीनिंग, फिर आप क्यों आप टेंशन में आ रहे हो? Facts, figure. For example, I am asking from you. I am asking, right? What is CAA? Okay. For example, I do not know anything about CAA. And I am asking you, what is CAA? Will you give me facts and figure? Yes or no? मैं आपसे पूछ रही हूँ CAA क्या है, आप मुझे facts और figure दोगे सबसे पहले? No. What will you do? क्या कहोगे? I am asking what is CAA? What will you do? You will explain the definition, the full form of CAA. Yes or no? मैं आपसे पूछती हूँ CAA क्या है, आप मुझे पहले full form बताओगे. First thing you will do is tell me the full form. Then what will you do? You will define it for me. This is CAA. राइट, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, ये क्या मुझे फैक्ट्स फिगर बता रहा है, मुझे सीए क्या है ये तो समझाए. आई विल गेट कंफ्यूज्ड इफ यू टेल मी द फैक्ट्स फिगर. फर्स्ट यू विल एक्सप्लेन टू मी द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ सीए. राइट, दैट इज इंट्रोडक्शन. वही तो होता है इंट्रोडक्शन. इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्टूडेंट्स हैव मेड इंट्रोडक्शन अ बिग थिंग, कॉम्प्लेक्स थिंग. इट इज जर्नल डेफिनेशन. ओके, क्लियर? समझ आ गई बात? इतना घबराने की जरूरत नहीं है यार. इंट्रोडक्शन तो जर्नल ओपनिंग लाइन. Whenever a movie starts, there is an opening line, na? Similar to that, introduction, an opening line to your explanation. Then in the body, you can explain the facts also, figures also, the examples also, everything. Body में आपको जो explain करना है करो, आपको कोई नहीं रोक रहा. Use flow charts also, divide the body into 2 parts. Use flow charts also, diagrams also if you wish to make diagrams, tables, graphs, figures, whatever you wish to inculcate, you can include, right?
ठीक है, एंड द कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी इन 3, मोस्ट प्रोबेबली इन 3 लाइन्स, ठीक है, आपकी मैक्सिमम 3 लाइन्स में ही कंक्लूजन होना चाहिए। यस, यू कैन डू दैट, एसडीजी से लिंक कर सकते हो, ठीक है। इन द कंक्लूजन 3 लाइन्स कंक्लूजन एंड इट शुड बी न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल कंक्लूजन होना चाहिए। थिंक अबाउट द एग्जामिनर ऑल्सो, इफ यू मेक योर आंसर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, राइट, इट विल ऑल्सो शो योर एटीट्यूड। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत हाई फाई वोकैब, उनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, तो बहुत हाई फाई तरीके से लिखने लगते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स हुज वोकैबलरी इज वेरी गुड, so they use complex words and complex answers, they create a very complex structure of their answer. Examiner is not going to be you can say impressed with your high fi English. ये कहीं से भी गलतफहमी मत रख लेना कि आप बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करोगे तो एग्जामिनर खुश होके 2-4 नंबर और दे देगा, कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, क्लियर। बेसिक सिंपल इंग्लिश इज टू बी यूज्ड, आपको बेसिक सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, यूपीएससी के शशि थरूर नहीं बनना, ठीक है। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, दिस मच इज क्लियर। if you have a very good vocab, that is very good, it is going to help you in life. आगे you are going to represent our country, you are going to attend global summits, so then your high vocabulary is going to be used. आप आगे जाकर कंट्री को बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे, वहां पर आप अगर शशि थरूर जी जैसी इंग्लिश बोल देते हो तो आप कंट्री को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट, एंड दैट इज वेरी गुड, हिज वोकैबुलरी इज परफेक्ट, इट इज वेरी गुड, नोबडी कैन मैच हिज वोकैबुलरी राइट नाउ, ओके, बट ठीक है, बट अगर अभी मेंस में आप सिंपल इंग्लिश, जितना ज्यादा सिंपल रहोगे उतना ज्यादा सुंदर है, सिंपल इज ब्यूटीफुल इन मेंस, ऑलवेज रिमेंबर यूपीएससी हैज ऑलवेज फोकस्ड द मोर सिंपल द मोर ब्यूटीफुल द आंसर इज, ठीक है, जितना सिंपल लैंग्वेज है उतना ब्यूटीफुल आपका आंसर होगा, ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे एग्जामिनर को और माथा पच्ची करनी पड़ेगी, तो इतना मत करना, सिंपल, alright, keep it very simple and keep it beautiful. Always remember, if your handwriting is bad, अगर handwriting ऐसी है कि बस कीड़े मकोड़े मार रहे हो पेपर में, तो उसको अभी से अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का, साफ साफ लिखने का। If your handwriting is bad, right now is the time to practice to improve your writing. खुला खुला रखो, right, words को, keep minimum space between, keep maximum space between the words, थोड़ा space लेकर लिखो, right, clear everyone, your handwriting should improve. आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम इतनी कि कोई पढ़ के समझ ले, राइट, देयर आर स्टूडेंट्स हु राइट वेरी बैडली, वेरी नास्टीली, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर राइटिंग इट इज रीडेबल, इतना लिखो कि जो लिख रहे हो ना वो पढ़ा जा रहा है, राइट इट एंड मेक एनीबडी एल्स अराउंड यू जस्ट ट्राई आस्क हिम टू रीड योर पेपर, ऑलराइट, क्लियर एवरीवन, डॉक्टर की तरह नहीं लिखना है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन मैटर्स, ओके। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु आस्क दिस क्वेश्चन, मैम कैन वी यूज हिंदी वर्ड्स इन बिटवीन? If we are writing in English, can we use Hindi words? See, if you are writing a quote, yes, in Hindi, any doha you can quote, right? कोई हिंदी दोहा आप लिख सकते हो अगर quote लिख रहे हो, if you are mentioning a quote, but do not use any other language except for English if you are writing in English. And if you are writing in Hindi, then use Hindi only, do not write in any other language. ठीक है? Yes, Praveen, spelling mistake होती है. Now just imagine you are an administrator and your report is full of spelling mistake. Will anybody, any ministry will take you seriously? मान लो आप एक रिपोर्ट भेज रहे हो अपनी किसी मिनिस्ट्री को और आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, कोई मिनिस्ट्री आपको सीरियसली लेगी? Will your reputation come down, yes or no? रेपुटेशन नीचे जाएगी, हाँ या ना? Yes, right? Avoid spelling mistake. An administrator can not do spelling mistakes. ठीक है, इतना याद रखना, ये बेसिक क्वालिटी है। स्पेलिंग मिस्टेक अभी से सुधार लो, दिस इज द टाइम, राइट, दिस इज द टाइम, यू कैन अवॉइड, यू कैन लर्न, करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गई बात। नाउ वी वर ऑन analyze and critically analyze. Now when you are asked to analyze, you have to examine methodically the structure or nature of the topic by separating it into 2 parts and then presenting it in form of summary. For example, the question is, analyze critically the interlinkages between Convention on Biodiversity and FAO Treaty on Plant Generic Resource for Food and Agriculture. This question is from GS paper 3. करंट अफेयर से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और FAO की ट्रीटी के बीच में जो इंटरलिंकेजेस होते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है।
अब now it is for example it is saying only analyze, critically word नहीं है. For example let's say it is saying only analyze. ठीक है. So analyze means first you have to explain what is convention on biodiversity and what is FAO treaty. ठीक है. पहले तो आप explain करोगे ये क्या है in 2 lines each. ठीक है. टोटल 4 लाइन्स में आप एक्सप्लेन करोगे ये है क्या, what are these two things. Then you have to explain, you have to first divide the topics. आपको इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है. So you will tell the features of convention on biodiversity and features of FAO treaty. ठीक है. आप इनके फीचर्स एक्सप्लेन करोगे. Then what will you do? You will find the common links. Question is saying interlinkages, यानी कि interlinks बीच में है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ियां हैं. You will explain the common points which are linking these two. इन दोनों चीजों को जो common points link कर रहे हैं, common features link करते हैं, आप वो explain करोगे and then you will conclude the answer. That is enough. Analyze means explaining first what is the topic, explaining it, introduction. ठीक है. Then what will you do? You will separately 2 topics will be given in the question when it is analyzed. जब analyze की बात आती है 2 topics दिए होते हैं question में. ठीक है. दोनों topics को separately explain करोगे. You will explain both the topics separately, their features. Then in the second part of the body of the answer, what will you do? You will find the common links between the 2 topics and then conclude your answer. Clear everyone? And critically का मतलब है अगर कोई negative points हैं उन particular topics में तो अपने solutions देने हैं. If there is critically analyze, it means you have to give your solution if there is any negativity. It is similar to examine only. Examine जैसा ही होता है ये. Clear? इतना समझ आ गया? Now if the word is evaluate, अगर word आ जाता है evaluate करो. ठीक है. Evaluate करो. Evaluate means question is, for example question is, has the RTI made a noticeable impact on our governance system? Evaluate. क्या RTI ने हमारे governance system पे एक noticeable impact डाला है, ऐसा impact डाला है जो positive है, जो noticeable है? Evaluate. If yes, evaluate. So when you are asked to evaluate, you have to give your sound judgment. आपको आपका sound judgment देना होता है. Sound judgment means what is the truth behind that statement. Sound judgment मतलब क्या वो उस बात सच है या नहीं. Sound judgment मतलब होता है is it true or is it false. If it is true, explain why it is true with example, with facts, with proof. And if it is not true, you think it is false, this statement is not correct, no RTI has not made a noticeable impact, then what you have to do? Give evidence. तब भी evidence दो. But first you will introduce what is RTI. Then you will say if it is this statement is true or false. फिर आप बताओगे ये statement true है, ये false है. उसके बाद आप उसे back करोगे, support करोगे evidence के साथ. Okay, and here you can also include your personal opinion. यहाँ आप अपना personal opinion conclusion में डाल सकते हो. Right? Clear everyone? इतना clear हो गया? So it is type of true or false. True false type का ये question होती है, ये topic होता है, question होता है. But true है तो example दो, false है तो भी example दो. Clear everyone? Now comes discuss. अब बात आती है discuss की. This is an all encompassing directive. That means जैसे for example you are sitting in a debate room. आप एक debate room में बैठे हो. ठीक है. If you are sitting in a debate room. Now if somebody gives you a topic, right, you will talk in favor of that topic or you will talk against that topic. You will debate, right? अगर आपको एक debate room में कोई topic दे दिया तो या तो आप for के arguments दोगे या against के argument दोगे orally. It is similar to that. Here the difference is you have to write your arguments on paper. Difference यहाँ पर यही है कि आपको topic दे दिया, आपको एक debate करनी है for the motion, against the motion, but आपको लिख कर debate करनी है, पेपर पे लिखना है अपने opinion. If you are for the motion, write it. If you are against the motion, write it and give suitable example. That is discuss. Discuss means discuss everything according to your opinion on that topic. जो आपको topic दिया है ना, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक दिया है आपको सब कुछ उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है. सब कुछ मतलब अगर आप उस टॉपिक के फेवर में हो तो सारी बातें डिस्कस करो क्यों आप फेवर में हो. अगर अगेंस्ट हो तो सारी बातें डिस्कस करो क्यों अगेंस्ट हो. क्लियर एवरीवन? दिस मच इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस मच इज क्लियर. देन वील मूव फॉरवर्ड. फिर हम आगे बढ़ेंगे पर पहले बता दो इतना क्लियर है. ऑल राइट. यस. ओके. सो दीज आर यस फीचर्स हो गए. डिस्कस मीन्स explain all the features according to your opinion and support them with your example.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस इफ CAA इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझे? नाउ यू अंडरस्टूड what kind of questions can be framed. Discuss if CAA is unconstitutional. So what you will do? What is CAA? You will explain. पहले बताओगे CAA क्या है, then you will if your opinion is yes it is unconstitutional, then support it why it is unconstitutional. Give example. If you say it is not unconstitutional, then support your answer why it is not unconstitutional. All right. Now the next third doubt which students have is, ma'am, should we write in point format or paragraph format? क्या हमें, स्तुति यादव, जब आप डिबेट करते हो तो आप फॉर या तो फॉर में बोलते हो या अगेंस्ट में बोलते हो, दोनों में तो बात नहीं करते ना. Yes or no, स्तुति? When you debate, you either talk for the motion or against the motion, right? So here also you have to pick one side. यहाँ पर आपको एक side pick करना है. Yes, Sheikh, you can write quotes also. ठीक है? Now the next doubt is, ma'am, should we write in point format or paragraph format? Point में लिखें या paragraph में लिखें? This is your choice, right? But I will recommend employ both these way of writing answers. Points and paragraph. कुछ part points में लिख दो, कुछ paragraph में, but do not completely write in paragraph format. इससे आपका आंसर ना बहुत monotonous हो जाता है. Paragraph format will result in, you can say, ऐसे हो जाएगा. शेख, मुझे आपका टॉपिक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. पैराग्राफ से क्या होगा? इट विल क्रिएट बोर्डम, राइट? एंड प्लस क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन विल टेक अ बैक सीट व्हेन यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्मेट. जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो ना, आपकी क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन एक बैक सीट ले लेती है. वो मत करना, ठीक है? क्लियर एवरीवन? समझ आ गई बात? ठीक है. इसीलिए पॉइंट पैराग्राफ दोनों फॉर्मेट एक आंसर में आप अप्लाई कर सकते हो. दैट इज व्हाई यू कैन अप्लाई बोथ पॉइंट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट इन वन आंसर. ठीक है, इतना समझ आ गया? दिस मच इज क्लियर? यस, यू आर राइट. 3-4 लाइन पैराग्राफ में, उसके बाद पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो. यू कैन राइट इन दैट फॉर्मेट. ऑल राइट, ओके. And presentation matters here. Always remember, an administrator is known by the way he presents himself, his opinion, his viewpoint. Always, हमेशा याद रखना. Yes, underline कर सकते हैं सतपाल, कि एक एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है, ये बहुत मैटर करता है. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज अबाउट एवरीवन. इवन इफ यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इवन इफ यू आर अ मैनेजर और HR और एनीथिंग, प्रेजेंटेशन मैटर्स. आपका प्रेजेंटेशन, भले ही आप एक बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप CA हो, CS हो, या एक IAS ऑफिसर हो, आपका प्रेजेंटेशन हर जगह यूज होता है. ठीक है? Everywhere your presentation is used, and your presentation is only going to give you success in life. आप किस तरीके से खुद को, अपने आंसर्स को, अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हो, उसी से आपको आगे सक्सेस मिलती है. इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू कैन गेट प्रमोशन ओनली व्हेन योर प्रेजेंटेशन इज गुड एज कंपेयर टू द अदर्स. जब आपका काम करने का ढंग, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तभी आपको प्रमोशन मिलती है. सिमिलरली इन दिस एग्जाम ऑल्सो, focus is on presentation. Even if you have less knowledge, your presentation is good, automatically you will get the you can say good marks, right? अगर यहाँ पर आपकी knowledge भी कम है, right? आपको confusion है, थोड़ा बहुत ही लिख कर आ रहे हो, but आपका presentation अच्छा है, right? क्लियर कट प्रेजेंटेशन है, तो उससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं. सो प्रेजेंटेशन विल इंक्लूड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट? यू कैन कोट सम रिपोर्ट्स ऑल्सो. मान लो कोई रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आपको याद है, आप वो कोट कर दो. कमिटीज, एनी जजमेंट और वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन दैट यू कैन यू कैन से राइट इन योर आंसर्स. आप अपने आंसर में किसी रिपोर्ट की कोई वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट है, आप वो मेंशन कर सकते हो. कमिटी का कोई रिसर्च वर्क है, वो मेंशन कर सकते हो. एंड द इंपॉर्टेंट की वर्ड्स यू कैन अंडरलाइन. सी, देयर आर 100 पेपर्स विच द एग्जामिनर हैज टू चेक इन अ डे. ठीक है? नो योगेश. ओके, 100 वर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर को, 100 पेपर्स होते हैं जो एग्जामिनर को चेक करने होते हैं. सो it may happen that examiner will not go through the complete answer. ऐसा हो जाता है कि पूरा आंसर ढंग से नहीं पढ़ा, ऊपर से पढ़ा. But if you have underlined the keywords, आपने keywords underline किए हुए हैं,
then the examiner will focus on those words and then obviously indirectly he will read all your answer. कंप्लीट आंसर अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किया तो आपका कंप्लीट आंसर एग्जामिनर पढ़ सकेगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे. क्लियर? सो मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स व्हिच यू वांट द एग्जामिनर टू लुक एट. यस, मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट श्वेता. आप चाहते हो एग्जामिनर ये लाइन तो पढ़े ही पढ़े, तो उसको अंडरलाइन कर दो. एंड ऑलवेज राइट विद ब्लू पेन. ब्लू पेन से लिखना है. एंड इफ यू वांट यू कैन कैरी अ पेंसिल, बट टाइम इतना नहीं होता कि आप बैठ के पेंसिल से अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएं. Time is limited. Always remember, it is not 30 hours, it is 3 hours to solve a question paper. So I will recommend you that from now onwards, try to draw diagrams and flowcharts using your pen only, because it will save your time in exam hall. Okay? No black pen, no red pen, no green pen. Blue pen carry करना बस. ठीक है? वहां ड्रॉइंग करने मत बैठ जाना. Even if you are underlining, underline with the same blue pen. Double underline कर लो. Okay? ऑलराइट, ब्लू पेन. यस श्वेता, वहां टाइम नहीं होगा आपके पास बिल्कुल भी. एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको 7 मिनट्स में लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है. बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली सिंसियरली एंड इफ योर स्पीड इज गुड, अगर घर में प्रैक्टिस कर करके इफ योर प्रैक्टिस हैज रीच्ड दैट लेवल दैट योर स्पीड इज वेरी गुड, देन यू कैन कैरी योर पेंसिल ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि घर में प्रैक्टिस कर करके आप 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर लेते हो पूरा, तो फिर आपको क्या करना है? पेंसिल ले जानी है. ठीक है मनीष कुमार, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप जेल पेन यूज करें या बॉल पेन. आई विल रिकमेंड बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन की इंक लीक होने का डर होता है. ठीक है, क्लियर? पानी वानी फैल गया पेपर पे थोड़ा बहुत तो वो फैल जाएगा, पेन की इंक जो होती है. ठीक है. Now, how will you evaluate your daily answers? Now, for that, if you have not joined any coaching, then Insights website is the best place. वहां पर क्या होता है? Hint is given after every question. Under every question, hint is given how to write the answer to that question. So you can follow that hint and write your answer accordingly. आप उन टॉपिक्स को, इस हिंट को फॉलो करके अपना आंसर अकॉर्डिंगली लिख सकते हो. ओके, क्लियर? और इनसाइट्स के हर क्वेश्चन के नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन होता है, वहां आप अपने आंसर की पिक्चर भी खींचकर अपलोड कर सकते हो, तो वहां के जो टीचर्स हैं वो उसे इवैल्यूएट कर देते हैं. यू कैन ऑल्सो क्लिक पिक्चर ऑफ योर आंसर एंड post it in the comment section of Insights, and their teachers, they evaluate it. Plus peer evaluation is there. The other fellow aspirants, they also evaluate each other's answers. Okay, clear? Now somebody is asking, Manish is asking, how to study syllabus. Download the syllabus and study it. अब how to study क्या होता है? आंखों से ही स्टडी होता है syllabus तो, right? इतना कोई टफ तो है नहीं syllabus. Okay, clear? डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, समझो. ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या समझना? हिस्ट्री में हमें पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या समझना? उसमें पढ़ना है तो पढ़ना है. ठीक है, क्लियर? यस योगेश, नॉट नो, इट इज फॉर MCQs. ओके, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेवलप करने के लिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वाज, कैन आई राइट माय आंसर इन पॉइंट फॉर्म और पैराग्राफ फॉर्म? यू कैन यूज बोथ द फॉर्म्स इन वन आंसर. How to differentiate questions like analyze, comment, explain, that I have told you. Third is how to improve my answer writing skill. For that, start with basic NCERTs. After reading every chapter, solve the back questions. Then download last 5 years previous year question paper. For example, today you have read GC Leong geography, right? Then identify the questions which came from that chapter which you have studied and solve it. मान लो आज आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है 1857 का रिवोल्ट. पिछले 5 साल के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसमें 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन निकालो, फिर उसे सॉल्व करो. वट एवर चैप्टर यू आर स्टडिंग इन M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी और स्पेक्ट्रम और GC Leong, identify the question from that chapter in the previous 5 years question paper and try to solve it. Okay, daily solve 2 questions. For current affairs, you can join Insights website, and daily they give 5 to 6 questions on current affairs for mains. You can solve any 2 questions out of them. How to write within the word limit? I've told you how to write within the word limit. Can I use pen or pencil for drawing diagrams and tables? If you have a strong habit of writing answers within 6 to 7 minutes, then yes. But if you exceed this time limit for writing one answer, then you have to just rely on pen for making diagram and table, because you have to save your time. Okay. Now, if you have any doubt, you can ask me. Comment section is on, question tab on hai. Yeah, if you do not have the syllabus ना, I have given the syllabus in this class. Okay, अगर आपके पास syllabus है ना, इस class की जो PDF होगी
वो आप देख लेना, वहां सिलेबस दिया हुआ है। श्रेयश, दृष्टि मीन्स आंसर राइटिंग इज ऑल्सो गुड, इनसाइट्स भी बहुत अच्छा है, दृष्टि का भी बहुत अच्छा है, ठीक है, दृष्टि इज ऑल्सो वेरी गुड। मैम पीवाईक्यू के लिए कोई बुक है क्या? शेख नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल रिकमेंड डू नॉट गो विद द बुक, वरना फिर रट्टेबाजी लगाना शुरू कर दोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज इट इज डाउनलोड करो, और जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो और आंसर लिखो, ठीक है। यस, बोथ एप्लीकेशन एंड वेबसाइट आर सेम। मैम फ्लो चार्ट में कुछ भी ड्रॉप किया हो तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं अभिषेक, फ्लो चार्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। मैम जीएस पेपर 4 स्ट्रैटेजी कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल। आदर्श सिंह, मैं इसका जो वेबसाइट है जो स्ट्रैटेजीज वगैरह की, वो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड अपलोड कर दूंगी, ओके। आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग जस्ट फ्यू डेज बैक एंड इट्स टेकिंग मी 15 just few days back na Tushar, so you have patience. What to do? Have patience, okay. Gradually the time limit will come down, as in when your content knowledge will increase, the time limit will come down. शुरू में एकदम 7 मिनट में नहीं लिखोगे, 2-3 महीने लगेंगे, it will take you 2-3 months, okay. मैम प्लीज रिप्लाई मी, ह्यूमंस कास्ट के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी होगी, स्टैंडर्ड बुक्स इज इनफ? ह्यूमंस कास्ट क्या होता है? नगमा, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मैम आपने भी यूपीएससी क्लियर है, डोंट माइंड, आई डोंट नो मैम अबाउट यू। नलिन, वन थिंग यू शुड नो अबाउट मी, दैट माय नेम इज अर्पिता शर्मा एंड आई एम योर एजुकेटर, ओके। उससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा यू हैव टू फोकस ऑन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, क्लियर। ये नेबरहुड वाली पॉलिसी यहाँ मत अपनाओ, दूसरों के घरों में झांक रहे हो, ठीक है, पहले अपना घर बनाओ। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर यूपीएससी फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करूं? मोहम्मद, यस, यूपीएससी के फॉर्मेट में लिखना शुरू करो। This is the best approach. You are, this doubt it is the best approach. This is how you will develop a habit. Okay. Ma'am, as a beginner, can I write NCERT summary in my own words? Summary वमरी में मत पीछे जाओ मोहम्मद. Do not go after summary. Read NCERT, highlight in the book, solve back questions. That is enough. You have to save time. Okay. Answer writing A4 sheet में करिए, notebook में. Aditya, that is on you. Either you can do on A4 size sheet or notebook. यूपीएससी मेंस में आंसर शीट लिमिटेड पेजेस की होती है ना? यस अभिषेक, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वर्ड लिमिट हैज टू बी फोकस्ड ऑन। हिंदी लिटरेचर कैसे ऑप्शनल है? बिकॉज आई एम बिगिनर। लवप्रीत, आई हैव टोल्ड यू, यू हैव बीन since day one in my special classes, right? Again and again I have repeated this, that go through the syllabus, go through previous year question paper. If you are finding it comfortable according to your interest, then pick it up. ऐसे दूसरे के कहने पे मत जाया करो, ठीक है। नलिन, किसने बोला आपने हर्ट किया? राइट, हु सेड यू हैव हर्ट, यू आर हर्टिंग मी? दिस इज द फैक्ट, दिस इज रियलिटी विच यूपीएससी एस्पिरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ. दे हैव टू फोकस ऑन देयर स्टडी एंड एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस फॉर देम, राइट। अगर आप उनमें से हो जो क्लियर करेंगे तो आप अपने ऊपर फोकस करोगे, वरना फिर इधर उधर ही घूमते रहोगे। मैम, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड फॉर डेली राइटिंग? फॉर डेली राइटिंग 2 to 3 questions, okay. If you repeat critically analyze one more time. Analyze means, what do you mean by analyze? Explain the topic, analyze all the features about that topic, okay. Explain the features of the topic. Critically means the negative point if there are in the topic, give your solutions of on them. Clear everyone? Please make video on essay writing. Okay ma'am, I'm giving 2020 attempt but did a big blunder. Yes, after prelims you can do it. That was CSAT. Please reply ma'am. नगमा, CSAT के लिए क्या? नलिन, पहले मैंने 100 बार बताया है, खुद पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर किसी वीडियो को फॉलो करना है. I have told this 110 times. First you have to read the newspaper yourself. Only then, if you have any doubt, then go and watch any video. Okay? उल्टा अप्रोच मत चलाओ. मैम, आंसर राइटिंग के लिए इंग्लिश वोकैब डेवलप कैसे करें? सिंपल इंग्लिश शेख, सिंपल इंग्लिश चाहिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, आपकी इंग्लिश अपने आप सिंपल इंग्लिश रेडी होती जाएगी, ठीक है. किसी ने कहा इंडियन लिटरेचर का सक्सेस रेशियो. लवप्रीत, मैं कह रही हूँ यूपीएससी का सक्सेस रेशियो बहुत कम है, फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? छोड़ दो, कोई और एग्जाम देख लो, ओके. मेरे कहने पे जाओगे या अपना डिसीजन लोगे? 4 लोगों की बात सुनोगे ना तो इधर उधर भागते ही रहोगे और कहीं एंड अप नहीं होने वाले. इसलिए अपना डिसीजन खुद लो, राइट. डू नॉट
थिंक अबाउट एनीबडी एल्स एंड दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. Abid, I've told you, when you start answer writing, you have to start with NCERTs. Whenever you are reading NCERTs, after every chapter, at the back of the chapter, there are questions, solve them. That is your answer writing practice. ठीक है? Clear? Yes, हिंदी में quotes लिख सकते हैं. Alright, so this was all for today. I hope you enjoyed today's class. If you really enjoyed, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो. ठीक है, और प्लस पर मैं भी कोर्सेज ले रही हूँ. अगर आपको सब्सक्राइब करना हो आर्ट एंड कल्चर या GS MCQs कोर्स में तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब. ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.